My dear students, in previous session on this chapter, that is physiology of learning and memory, हम लोगों ने लर्निंग के डिफिनीशन, लर्निंग के क्लासिफिकेशंस और हम लोगों ने नॉन एसोसिएटिव लर्निंग्स के एग्जांपल्स और उनका फिजियोलॉजिकल बेसिस पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो कि आपको दूसरे वीडियो में अवेलेबल है। It is available in the YouTube link also, in the given in the description, कि हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज हैबिचुएशन, व्हाट इज सेंसिटाइजेशन। आज हम लोग प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए नेक्स्ट क्लास में आते हैं। सो इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्सिव लर्निंग, व्हाट इज incidental learning. Then reflex learning are of two major types. One is called associative learning and another is called non-associative learning. Associative learning is the type of learning in which there is a relation of one stimulus to another. Non-associative learning is the type of learning in which the person either ignore after the repeated stimulus or it reacts more in response of the repeated stimulus. Non-associative learnings are of two types. One is called habituation, another is called sensitization. Associative learning is also of two types. It is also called as classical conditioning. One type is called classical conditioning. It is very well discussed in various platforms that classical conditioning is also known as the Pavlovian conditioning. Pavlov was the first person who discussed about this type of learning. Another is called operant or instrumental conditioning. We will discuss today about more details about these two, what is the classical and what are the operant conditioning. So आज के वीडियो में हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So coming to the what is classical conditioning. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? Classical conditioning is the conditioning, or you can say is the type of the learning in which the learning involves the relationship between the two stimuli. One stimuli is called the neutral conditioned stimulus, that is CS, and another stimuli is the unconditioned stimulus. यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग में we will learn detail that the classical condition में दो different stimuli के बीच में relationship होते हैं, and this type of conditioning is also called as type 1 conditioning. It is also called as type S conditioning. Respondent conditioning is the another name of this, and as I told you just, the Pavlovian conditioning. It will be like this, Pavlovian. So it will be the Pavlovian conditioning. So classical conditioning is the one type of conditioning. It is basically involves the relationship between the two stimuli. Another type of conditioning is called as operant conditioning. Operant conditioning, when the learning is involves the relationship between the spatial behavior with a reinforcement event. यहाँ पे लर्निंग के साथ जो स्पेशल बिहेवियर लर्न की जाती है, उस दोनों के रिलेशन में और रीइंफोर्समेंट इवेंट के बीच में रिलेशनशिप को लर्न किया जाता है. दिस इज आल्सो नोन एज टाइप 2 कंडीशनिंग और द टाइप आर कंडीशनिंग. इसी को टाइप 2 और इसी को टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है. इसी का दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है. इस कंडीशनिंग को एक ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग भी कहा जाता है. So we will read in more details about these both two types in the upcoming slides. So now coming to classical conditioning. Classical conditioning is a reflex response. Classical conditioning is a reflex response. यह एक reflex response है. This is acquired by repeatedly pairing the given stimulus with another stimulus which normally produces the stimulus. अब ये एक ऐसा स्टिमुलस जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उस स्टिमुलस को एक और दूसरे स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं. मीन्स दो स्टिमुलस को आपस में जोड़ देते हैं.
ऑब्वियसली जो पहले वाला जो जो दूसरा स्टिमुलस था वो तो रिस्पॉन्स देने वाला था, लेकिन उसके साथ उसके आइदर विजुअल या साउंड इस तरह से उसको एक स्टिमुलस और के साथ जोड़ देते हैं, एंड देन वी सी कि वो जो पहला जो स्टिमुलस जिसको जो कि ये नॉर्मल ये रिस्पॉन्स नहीं था, वो भी ये वाला रिस्पॉन्स देने लगे। देन दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेम्पोरल एसोसिएशन। यहाँ पे टेम्पोरल एसोसिएशन बनाया जाता है, इज मेड बिटवीन द न्यूट्रल कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनदर अनकंडीशनड स्टिमुलस. We will read more details about the examples, then we can have the better understanding of this topic. It depends upon the formation of new functional connections in the nervous system. ये नए functional connection बन जाते हैं हमारे nervous system में। यहाँ पे reinforcement का point है, but it should be followed, conditioned reflex should be followed by unconditioned reflex. यहाँ पे दो तरह के stimulus है, conditioned stimulus, it should be followed by unconditioned stimulus. I will show you the example. This type of conditioning is called Pavlovian conditioning. Classical conditioning, this was first described by Pavlov, and he was a Russian physiologist. He had first described this concept. He noticed that his experimental dogs, वो dogs को लेके कुछ experiments करते थे, उनके biological processes के बारे में, उनके physiology के बारे में वो पढ़ते थे, and he noticed that his experimental dogs salivate just on seeing the animal housekeeper who used to feed. उन्होंने ये देखा कि जो उसके जो कुत्ते थे, उनके जो कुत्ते पाले हुए कुत्ते थे, वो कुत्ते को खिलाने के लिए उसने एक हाउसकीपर रखा था, एनिमल हाउसकीपर, और उन कुत्तों के अंदर उसने ये देखा कि ये कुत्ते उनको अपने नजदीक देख के, हाउसकीपर को नजदीक देख के वो कुत्ते सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो उसको लगा कि जो कुत्तों को सेलिब्रेट करना चाहिए था फूड को देख के, नहीं कि पर्सन को विजन में देख के। लेकिन दिस टाइप ऑफ थिंग ही हैज जो टू ऑन सीइंग द एनिमल हाउसकीपर, जो हाउसकीपर को ही देख के डॉग सेलिब्रेट करने लगे थे। सो दैट टाइप ऑफ नोटिस इज गिवन इन द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉर्ड किए और पेपर पब्लिश किया। देन दैट बिकम ए वेरी फेमस आर्टिकल कॉल्ड द Pavlov's experimental. So what he says that there is some sort of association that has developed in the brain of these dogs between the visual stimuli relating to seeing the housekeeper. अब ये हाउसकीपर को देख के किसी और कुत्ते के अंदर जो जिसे वो नहीं खिलाता है, जो उसको वो नहीं, जिसने उसे पहली बार देखा है, वो कभी भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन वो कुत्ते जिनको कि ये रेगुलर खिला रहा था, जिन एनिमल्स को, वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हाउसकीपर इज बेसिकली ए कंडीशनड रिफ्लेक्स। एंड व्हाट इज द अनकंडीशनड रिफ्लेक्स? अनकंडीशनड इज द फूड, दैट इज जो फूड उस कुत्ते के मुंह में डाले जा रहे हैं। सो अनकंडीशनड स्टिमुलस इज बेसिकली द इनेट और यू कैन से द इनबॉर्न स्टिमुलस। सो अनकंडीशनड हो गया उसका इनेट स्टिमुलस जो कि उसके बाद बर्थ से है। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? क्योंकि ये पर्टिकुलर आदमी उसे खिला रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस बिकम द कंडीशनिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स। उनके लिए ये एक कंडीशन बन जाता है। सो दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड एज द क्लासिकल कंडीशनिंग। एक अनदर एग्जांपल जो व्हेन देन ही स्टार्टेड डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हाट ही डू एट फर्स्ट he started ringing a bell. Now the Pavlov, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बेल बजाया, एंड बेल बजाने के बाद आफ्टर सम टाइम विद इन ए फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मोमेंट he started giving food to the animal. What he see कि बिकॉज ये फूड को देख के ये डॉग अपने आप ही सेलिब्रेट करते हैं। फूड को देख के डॉग का सेलिब्रेट करना, फूड को देख के डॉग का सेलिब्रेट करना इज द अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। बट दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज डन सो मेनी टाइम्स। सेम दैट इज बेल बजा और उसके बाद फूड खिलाया, एंड सो
what happens, the dog started salivation if after some time of repetition. What has been observed, that dog started salivation आफ्टर सम टाइम, बहुत बार ये करने के बाद ये देखा गया कि घंटी की आवाज जब भी बजे तक कुत्ते सेलिब्रेट करने लगते हैं. सो दैट सेलिब्रेशन इवन विदाउट द फूड, यहाँ पे अभी क्या है, फूड नहीं है, तब भी फूड उसको सेलिब्रेट करवाना. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कंडीशनड रिफ्लेक्स. सो नाउ दिस इज द कंडीशन. नाउ थिंक, यदि यही बेल यदि बहुत देर तक बहुत बार बजाया जाए और कुत्ते को फूड ना दिया जाए, अब उसका क्या होगा, सेलिब्रेशन रिस्पॉन्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द क्लासिक कंडीशन. सो इसी चीज को फिर से डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखाया गया. सो देयर इज बिफोर देयर इज बेल इज बॉर्न, देयर इज अ डिंग सॉन्ग इज हर्ड, डॉग विल लिसन दैट सॉन्ग बट देयर विल बी नो रिस्पॉन्स. यदि कुत्ते को यदि सिर्फ घंटी बजाया जाए और एक्सपेक्ट किया जाए कि वो सेलिब्रेट करेगा, ही विल नेवर. यदि सिर्फ घंटी बजाया जाए तो कुत्ता सेलिब्रेट नहीं करेगा. इट इज द बिफोर द फर्स्ट रिस्पॉन्स. बट ड्यूरिंग दैट व्हाट यू सी दैट, यदि उसी टाइम में पहले यदि फूड दिया जाए कुत्ते को, तो डॉग विल reflect salivation. So is that this is basically the innate response. So this is previous. Now what happens if you start giving the associating between the two stimulus? One stimulus is the bell ringing, number two is the giving food and then the salivation. So ये तो food को देख के salivate कर रहा है, लेकिन what he is thinking, जो कि दिस फूड इज कमिंग ओनली व्हेन देयर इज द बेल इज साउंडेड. सो जब बेल बजाए जा रहे हैं तब ये फूड आ रहा है. सो क्या होगा, धीरे 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 उसके माइंड में रीवायरिंग हो जाती है. ही स्टार्ट्स लर्निंग दैट थिंग that this sound is associated with the. So during this process, when this is done repeated many times, when this is done repeated many times, what happens, even after even the bell is ringing, dog will start liking that sound and he will that will start salivating. So this is basically the classical Pavlovian conditioning. Now you can understand. अब आपको पता चल गया कि what is classical Pavlovian conditioning. There is some prerequisites for development of condition reflex. अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो सभी के साथ वो condition reflex हो जाएंगे, उसके लिए कुछ जरूरी prerequisites भी है. Condition reflex को डेवलप करने के लिए there are some essential prerequisites are required, that there should be alertness and the good health. यानी कि जो पर्सन या जो एनिमल जिसमें ये कंडीशन रिफ्लेक्स आप इनिशिएट करना चाहते हैं, दे शुड बी इन दी अलर्टनेस एंड इन द गुड हेल्थ. मीन्स अलर्टनेस ये होना चाहिए कि उसे साउंड सुनाई देना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, यानी उसका हेल्थ भी सही होना चाहिए, कान सही काम करना चाहिए. सो अलर्टनेस एंड गुड हेल्थ इज द एसेंशियल. देन अनदर थिंग इज द टाइमिंग. अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि टाइमिंग मीन्स timing of condition and unconditioned reflex is very important. So after say many experiments, what he has done, started doing that कि condition reflex दे दिया और उसके बाद फूड नहीं दिया, बहुत देर तक, 1 घंटे के बाद फिर जाके फूड दिया, तो then there will be no conditioning. तब ये conditioning नहीं होगी. So timing is very important. So condition and unconditioned should be paired in a temporal manner. So this pairing is called temporal pairing. So इसमें time association pairing होना जरूरी है. So this association is called temporal pairing or time association is very important factors. Another thing, the duration of the condition reflex should overlap. Means condition reflex का जो duration है वो overlap करना चाहिए unconditioned reflex को. That is called as the pairing. ये pairing या timed या temporal association is very important. Then there is reinforcement. Means reinforcement में उसको बार बार किया जाए, repeatedly किया जाए condition, then unconditioned. So what happens कि वो condition unconditioned से जिस तरह का response पहले आ रहे थे due to inborn, conditioned से भी आने लगेंगे. So these are the few requisites. There should not be any external inhibition. ऐसा नहीं कि यदि कुत्ते को फूड मिल रहा था पहले कंडीशन और अनकंडीशन के बाद में, और बीच में यदि आपने कुछ
इनहिबिशन कर दिया कि फूड दिया ही नहीं, फूड का डब्बा बंद कर दिया या डब्बे डब्बे उसके सामने रख दिया करे बंद करके, तो वो यदि नहीं ओपन कर पाता तो देयर इज दैट इज कॉल्ड इनहिबिशन. सो दीज आर फ्यू एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स. Unconditioned stimulus, it can be the sensory and motor, it can be the pleasant, it can be unpleasant or neutral. So unconditioned stimulus can be of various types. So there are the various types of unconditioned stimulus. Regarding the physiological basis of conditioned reflex, conditioned reflex में यदि appetitive या aversive, यदि appetitive यदि या aversive unconditioned reflex है, तो what happens, there is the conditioned reflex. So unconditioned reflex will go, and then the appetitive unconditioned reflex, and there is the modifiable if the olfactory sense is there, so there is also conditioned reflex. Now if both are joined together, olfactory and visual sense, so what happens, the first stage, and you can see the CS2, that is the visual sense, will also give the similar. So this is the some another experiment showing it. So there is the formation of the new connection in the nervous system is the physiological basis of the conditioned reflex. If you see the cellular mechanism, there is the changes or in the membranes basically associated with the new formation of the or the new insertion of the receptors, or you can say the channels in the presynaptic as well as the postsynaptic neurons. So this is associated with the neurotransmitters released from the synapses associated with the unconditioned, that is also related with the conditioned reflex. So this is basically the cellular mechanism. What happens, the conditioned reflex, conditioned stimulus and unconditioned, normally the unconditioned stimulus was giving the area of the brain was stimulated in the unconditioned stimulus, but conditioned stimulus normally due to inborn they are not able to produce the response. So but when it is timed properly, the unconditioned stimulus which are heard, suppose the bell and the taste sense, if it is a different area of the brain, but the area of the brain which is responsible for the conditioned and unconditioned stimulus, if they are paired together, the unconditioned is associated with this is the conditioned. So this is basically, so what is the Pavlov view for the physiology of learning? Initially the unconditioned stimulus excites the area which are responsible for unconditioned stimulus receiving center, and then excites the unconditioned response center. So this is the initial thing. It is basically the inborn error, inborn our reflex. The conditioned stimulus excites the conditioned center and which elicit no response of interest. यदि आपने conditioned stimulus यदि आप सेपरेटली दे रहे हैं बिना किसी से जोड़े हुए एक अलग टाइप का, जैसे कि बेल बजा रहे हैं, तो कुत्ते को क्या फर्क पड़ता है, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है नॉर्मली यदि उसको फूड के साथ एसोसिएशन नहीं है. सो दिस इज बेसिकली नो रिस्पॉन्स ऑफ इंटरेस्ट. बट व्हेन दीज टू आर ज्वाइंड, that is called the training. So when the training is associated, the excitation in the conditioned center, stimulus center flows to the unconditioned center and thus eliciting the same response as the unconditioned stimulus center. Now coming to the another type of conditioning called operant conditioning. So अब हम लोग दूसरे टाइप का कंडीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, that is called operant conditioning. It is also known as reward conditioning. I told you that it is also called as R conditioning or the reward. It is type 2 conditioning. It is also called as trial and error. It is also called as instrumental conditioning. Naturally occurring response is strengthened by the positive reinforcement. Then it is called as the reward conditioning. Sometimes यदि मान लो कोई normally response मिल रहा है, नॉर्मल रिस्पॉन्स यदि किसी के साथ है, किसी स्टिमुलस के साथ, और आप उसके साथ और रिवार्ड ऐड कर दोगे, सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. इट कैन बी निगेटिव और द एडवर्सिव कंडीशनिंग आल्सो. इसमें क्या होगा, नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स को यदि आप निगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के साथ जोड़ देते हैं तो आपका वो नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा. दैट इज कॉल्ड एडवर्सिव कंडीशनिंग. सो दीज टू टाइप्स आर द टाइप ऑफ द operant and the operant conditioning. It is of two types, reward or the adversive conditioning.
Operant conditioning, in this basically type of conditioning, the subject is taught to perform some voluntary action in response to a particular stimulus. अब यदि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को सिखाया जाता है कि टू डू ए परफॉर्म ए particular voluntary action in response to a particular stimulus, either the visual or the sound stimulus, that alert him to perform the learned action in order to obtain the reward or the avoid punishment. मीन्स सब्जेक्ट को ऐसा परफॉर्म करना सिखाया जा रहा है जिससे कि आप यदि उसके साथ यदि आप वो करते हैं तो ब्रेन को अलर्ट हो जाता है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आइदर यू विल गेट रिवार्ड और द पनिशमेंट. सो यदि रिवार्ड के साथ जुड़ा होगा तो वो और मन लगा के करेगा और ज्यादा करेगा, इंक्रीज करेगा. सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. और यदि पनिशमेंट एसोसिएटेड होगा तो वो करने के लिए उसे ही विल हैव द निगेटिव रीइंफोर्समेंट. सो द वीक होगा रिस्पॉन्स. अलर्टिंग सिग्नल, जो सिग्नल अलर्टिंग है, जो ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, सो दैट सिग्नल एक्ट एज द कंडीशन स्टिमुलस एंड वेयर एज द प्लीजेंट या अनप्लीजेंट इवेंट आइदर रिवार्ड या पनिशमेंट जो भी इसके साथ एसोसिएटेड है और उसके वजह से जो बिहेवियर चेंज होगा दैट इज कॉल्ड अनकंडीशन रिस्पॉन्स. सो जो इवेंट है, जो प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट इवेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज द. सो यहाँ पे आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे स्टिमुलस को रिलेशन नहीं है, यहाँ पे रिलेशन किसका है, अलर्टिंग सिग्नल एंड द इवेंट ऑफ द रीइंफोर्समेंट आइदर द रिवार्ड और द पनिशमेंट. सो दिस इज कॉल्ड अनकंडीशन एंड द प्रीवियस वन इज कॉल्ड कंडीशन रिस्पॉन्स. एग्जांपल देख रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटली एक चूहा यहाँ लिया गया है. एक चूहे को एक मेज के थ्रू दौड़ाया गया. मेज मीन्स कोई एक ऐसा पाइप जैसा है. एक साइड से देखा, यदि वो अंदर एंटर किया और वहां से उसको रास्ता दिया गया दोनों साइड. अब यदि मान लो वो इस वाले गली में घुसा, यदि इस मेज में घुसा एंड एट दैट टाइम सपोज इफ ही गेट सम फूड हेयर, यदि उसको कुछ फूड मिले, ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द रिवार्ड. सो इस गली में जाने से उसको रिवार्ड मिलता है. अनदर टाइम एक अनदर चूहे को यदि इस तरह से मेज में घुसाया जाए और वहां पे यदि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल शॉक मिले, व्हाट विल हैपन, सो द डॉग विल द रैट विल रिटर्न बैक. सो इसमें यहाँ पे ये रिटर्न बैक हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द रिवार्ड, दिस इज कॉल्ड एज द पनिशमेंट. सो यदि यहाँ होगा तो देयर इज द इंक्रीज प्रोबेबिलिटी कि रैट विल गो इन दैट मेज और अगेन यदि उसको यदि सिमिलर मेज में बाद में डाला जाए तो हमेशा उस साइड ही जाएगा, भले वहां पे फूड है कि नहीं है, क्योंकि इस साइड जाने से, इस पर्टिकुलर साइड जाने से उसे रिवार्ड मिल रहा था, दूसरे साइड जाने से उसको क्या हो रहा था, पनिशमेंट मिल रहा था. तो वो दैट विल बी द पनिशमेंट. सो ही विल नॉट गो इन दैट वे. अनदर एग्जांपल्स दैट द कार ड्राइवर एंड ट्रैफिक लाइट. कभी कभी हम ट्रैफिक लाइट को देखते हैं और ग्रीन लाइट को देख के हम क्रॉस कर जाते हैं, रेड लाइट को देख के हम क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है यदि हम रेड लाइट को देख के क्रॉस करेंगे, जो हम ब्रेक दबाएंगे, रेड लाइट को देख के यदि हम रेस दबाएंगे, एक्सीलरेटर, व्हाट विल हैपन, द ट्रैफिक पुलिस पर्सन हु इज सिटिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर, ही विल गिव यू पनिशमेंट. सो दैट पनिशमेंट के डर के हम लोग कभी भी रेड लाइट को क्रॉस करने से डरते हैं. सो दिस इज द वन अनदर एग्जांपल. So the driver stops the cars on seeing the red light and drives on seeing the green light. So this is basically the example of the operant conditioning. What is the integration? Integration area is the area of hippocampus and amygdala because it is important in linking the stimulus to the operation. अब ये जो है सो ये stimulus को operation के साथ जोड़ रहे हैं. ये क्योंकि उसके साथ ये अच्छा नहीं लग रहा है उसे, इसलिए उसके इमोशंस के साथ जुड़ गए हैं. अब यदि इमोशन के साथ जुड़ जाएंगे कि पनिशमेंट या रिवार्ड, तो ऑब्वियसली तो वो जो है सो उस काम को करेगा जो उसे अच्छा लगता है, या उस काम को नहीं करेगा या अवॉइड करेगा जो उससे, जिससे कि उसे पनिशमेंट मिलने का डर है. सो इसलिए इसमें इमोशंस लिंक हो गए हैं लर्निंग के साथ. सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज द ऑपरेंट कंडीशनिंग. और इसके लिए यहाँ पे मेमोरी एज वेल एज द इमोशनल सेंटर्स आर इंपॉर्टेंट. मेमोरी के लिए हिपोकैम्पस एंड इमोशनल रोल के लिए हमारा एमिगडेला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. सो दिस इज द एग्जांपल्स. इंटीग्रेशन फाइनली अकर्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और उसमें भी ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया में. ऑर्बिटोफ्रंटल एरिया में ये बस पर्टिकुलरली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इनका इंटीग्रेशन. एक एग्जांपल ये और है एक्सपेरिमेंटली, एक बॉक्स में इस तरह का डलाया गया, यहाँ पे दो बटन लगाए गए हैं.
यदि ये रेड लीवर खींचता है, यदि ये लीवर खींचता है और रेड लाइट सिग्नल हो तो उसके साथ उसको डिस्पेंसर से फूड मिले, और यदि ये ब्लू वाला इस साइड वाला खींचे और उसको इलेक्ट्रिक करंट मिले, शॉक जनरेट हो, तो व्हाट ही विल लर्न कि ही विल ऑलवेज ट्राई टू डू द ऐसे वाले डिस्पेंसर को बटन को दबाएगा, ऐसे वाले लीवर को खींचेगा जिससे कि उसको फूड मिले। सो दिस इज बेसिकली दी एक्सपेरिमेंट, इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके ऑपरेंट कंडीशनिंग को सीखा गया है। सो वन साइड देयर इज द रिवार्ड, अनदर साइड देयर इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यू कैन से, तो उसके साथ यदि स्पीकर या साउंड को जोड़ दिया जाए कि साउंड अलग अलग साउंड है, इस तरह के साउंड क्रिएट होने से फूड मिल रहा है, अलग साउंड क्रिएट होने से यदि वो मिल रहा है, यदि उसको साउंड खींचा उसने, उससे वो वही पिलर दबाएगा, वही लीवर दबाएगा जिससे कि वो उसे पनिशमेंट, उसे रिवार्ड मिलता है। So the positive reinforcement is basically a pressing a lever is associated with positive reinforcement and that is called reward, for example food. Another time negative reinforcement कब बोलेंगे, जब pressing is lever is associated with the negative reinforcement, जैसे lever दबाया और उसको शॉक मिल गया, punishment मिल गया. So this is basically the experimental evidences to show the operant and the classical conditioning. एक एग्जांपल और है क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली कि बेबी स्माइल कर रहा है, बेसिकली इट इज एक्सीडेंटल, बट इफ द फादर पिक्स अप द टेरल आफ्टर हिज स्माइल, व्हाट हैपेंस, the baby will start more smiling so that his father keeps on in for him. So this is basically the reinforcement. So the picking up, the giving the reward to the baby in the form of that, so the baby will start deliberately doing that response. So this is basically the example of the instrumental conditioning. इसके 4 quadrants हैं. One is reinforcement. Reinforcement can be positive, reinforcement can be negative. There is another basically जहाँ पे punish करना है, so punish is also important thing. So operant conditioning में positive reinforcement and negative reinforcement. The positive reinforcement, that is a stuff to good, adding good stuff to increase a behavior. Negative punishment, that is the delaying the good stuff. सो एक और भी तरीका है कि आप निगेटिव पनिशमेंट कब बोलते हैं, यदि आप किसी को गुड अच्छा स्टफ नहीं दे रहे हैं जो कि उसके लिए, तो व्हाट हैपेंस, तो दैट इज बेसिकली, जैसे कि ये डॉग है, यहाँ पे डॉग उसके आगे बढ़ना चाह रहा है और आप उसको यदि नहीं छोड़ रहे हैं, आप उसको जोर से पकड़ रखे हैं, सो व्हाट हैपेंस, सो दिस इज बेसिकली द डिलेइंग द गुड स्टफ. लेकिन यदि ऐसे छोड़ देते हैं उसके साथ साथ आप भी चलने लगते हैं, सो ये पहले वाले में पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, दूसरे वाले में निगेटिव पनिशमेंट है. सो दिस इज द 2 अनदर. इनके अलावे 2 अदर है. देयर इज कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट, जैसे वो दौड़ रहा है और आप पीछे की तरफ जा रहे हो, खींच रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट. एंड अनदर इज द निगेटिव रीइंफोर्समेंट. सो निगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये ज्यादा आगे जा रहा है और यू विल फील कि मुझे उसको वॉच आउट करना है क्योंकि ये आगे बढ़, तेजी से बढ़. तो इस तरह से उसको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिए गए. सो आइदर द इन्फोर्समेंट और द पनिशमेंट, इनके भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं. सो दीज थिंग्स आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेंट कंडीशन. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मेमोरी. हम मेमोरी एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड सो थैंक यू ऑल. सो आई एम स्टॉपिंग. थैंक यू.